Hello dear students, once again welcome back to you all. Myself Amujraj, and finally we are going to see the part 3rd for class 10th bio chapter, which is our control and coordination. So mostly here we will deal with animal coordination, but before starting this video, let me inform certain important informations to you all. Most of you had asked for me about the math syllabus. Don't worry about math syllabus, because we will just complete the math syllabus after completing the science syllabus, because in science we can see 3 subjects are there: physics, chemistry and bio. That's why I decided to complete maximum 3 chapters from each part of the science. Okay, so let's continue on this video. And guys, here as I told you, we will see only animals coordination, but we can see that in our second part we had not completed totally the plant coordination. That's why it became essential for us to go through certain things that we were unable to cover up in the second part. ठीक है, चलो स्टार्ट कर देते हैं पहले. तो प्लांट कोऑर्डिनेशन के कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता दूंगा पहले. ठीक है, प्लांट्स कोऑर्डिनेशन. Okay, so there we what we saw there guys in second part, we saw about the tropic movements, nastic movement. Actually I told you up to 4 types. Okay, 3 types only I told you about tropic movements. Now we have to continue from which one? Tell me, 4th one, which is our water or hydrotropic. Yes guys, now we are going to continue, or we completed this one. If we completed also, no need of worry, that's see or just revise it. Hydrotropic, here we can see the water is acting just like a stimulus, and also we know that in case of tropic movement, the direction of the response is totally dependent on the direction of stimulus. So let me draw a diagram first. Suppose we are going to see a diagram, simple diagram of beaker we took here, and we suppose took here a small piece of dug land. Okay, suppose this land is empty or we already dug it up in the soil. ठीक है, चलो यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं. यहाँ पे क्या ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे ये क्या है मेरा, फुल ऑफ वाटर, एक बकेट है जो कि फुल है विथ वाटर. ओके, सपोज हियर वी आर प्लांटिंग वन प्लांट. ये हमारा एक प्लांट, यहाँ पे मैंने इसे प्लांट कर दिया. ये हमारा इसमें रूट लगा हुआ है, कोई बात नहीं है. और हियर वी कैन सी दैट गाइस, ये हमारा लीव्स है इसका. ठीक है, चलो कोई बात नहीं, यहां से समझो तुम. ये हमारा एक क्या है, ये हमारा एक प्लांट है, ये हमारा एक डग्ड सॉइल है या एक रीजन है जो कि पूरी तरह से खोदा हुआ है. ठीक है, अब हम लोग क्या देख सकते हैं कि ड्यूरिंग द पीरियड और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इट्स plantation we can see the roots will be just in the downward direction and its stem will be in the upward direction as because of the geotropic movement. ठीक है, इतना तो पता हो गया. अब देखो आगे चल के क्या होगा. आफ्टर सर्टेन टाइम, सपोज आफ्टर 3 days or 4 days, when we will come back and see, then at that time when we will take out this particular plant, at that time we will observe that the root got bent about certain length in the region of where the water is kept. Why? Because of the hydrotropic or because of the water which is kept as a stimulus. अब ऐसा होता क्यों है, तो देखो जब भी यहाँ पे ये केस में, तो पहले 2 चीज पहले क्लैरिफाई करो. ये हमारा पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिक है, यह पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म है, एंड ये हमारा नेगेटिव क्या कर रहा है, नेगेटिव शो कर रहा है. अब एक दिमाग आपके दिमाग में एक डॉट आ रहा है क्या, कि ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसे क्यों टर्न हो गया इस साइड. तो इसका रीजन क्या है कि जहां पर भी मॉइस्चर कंटेंट रूट को मिलता है, तो रूट हेयर्स उसी साइड जाते हैं in order to receive or in order to get or acquire more amount of moisture, so that its plant or so that the plant can germinate well. ठीक है, तो ये तो पता चल गया कि ये सिंपल था हाइड्रोट्रोपिक. बट जो लास्ट वाला हमारा थिग्मोट्रोपिक, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बस थोड़ा सा है, इसमें ज्यादा डाउट मत लेना, क्योंकि ये काफी आसानी से हम लोग क्लियर कर लेंगे. चलो देखते हैं थिग्मोट्रोपिक क्या है विद द डायग्राम. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी कैन सी थिग्मोट्रोपिज्म और थिग्मोट्रोपिक. नो नीड ऑफ चेंजिंग थिग्मोट्रोपिज्म और थिग्मोट्रोपिक. Now guys, as we can see here,
the touch of any surface is acting as like a stimulus, and the response which will the plant show is totally concerned with the direction of the stimulus. Now guys, when we will go through thigmotropism, no, there we have to see a term which is tendrils. So you might be having one doubt, what is this one tendrils, or how we can classify or how we can define tendrils or what is tendrils, समझने के लिए तो चलो बता देता हूँ. Actually guys, tendril होता क्या है? Tendril is a part of the plant which is helpful for those plants whose stems are weak, यानी जिसका स्टेम वीक होता है. अब कई बार स्टेम की जगह पे आपको लीफ भी दिखने को मिलेगा. यानी टेंड्रिल्स के दो टाइप होते हैं, एक तो स्टेम टेंड्रिल और एक लीफ टेंड्रिल. अब टेंड्रिल का मतलब नहीं समझ में आया तो अभी समझा देता हूँ. जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कई सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं, ऐसे हमारे वेजिटेबल्स ही होते हैं मोस्टली, जो कि काफी लंबे हो जाते हैं. जैसे यू नो गाइस, ककम्बर, खीरा, लौकी, बीटर गॉड, हमारा बोटल गॉड, ये सभी क्या होता है, ये सभी काफी लंबे होते हैं. और लंबे होने के कारण वे अच्छी तरह से ऊंची और नहीं जा पाते हैं, अच्छा हाइट वो गेन नहीं कर पाते हैं. इन ऑर्डर टू गेन ए गुड हाइट दे नीड ए सपोर्ट, एंड इन ऑर्डर फॉर हैविंग ए सपोर्ट दे नीड टेंड्रिल्स. समझ में आ गया टेंड्रिल क्या है? अब चलो डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ. सो गाइस, हियर वी कैन सी टेंड्रिल क्या, आपको सिंपली लिख देना है. सपोज वी आर टेकिंग हियर वन बम्बू और वन स्टिक वी आर टेकिंग, which we are keeping in the soil as for support for our plant, and we are planting here. आपको मैंने बता दिया कि tendrils are of two types, stem tendril and stem and leaf. अब चलो stem tendril and leaf tendril में अंतर क्या होता है. तो देखो, आपको पता है कि stem कहाँ से बनता है, through the nodes. stem get generated, stem comes from through the node. और लीफ कहाँ से आता है, तो नोड का जो अपर वाला रीजन होता है, या कहो कि जो हमारा स्टेम का जो कौन सा रीजन, बताओ समझने के लिए क्या कह सकते हैं, तो वैसा रीजन जो कि काफी लास्ट क्षेत्र में रहता है, या कहो लास्ट पार्ट में रहता है. जैसे समझने वाली बात है कि लीफ का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, तो फाइनली कहेंगे कि हमारा स्टेम जो होता है वो तो बहुत मेन रीजन होता है, लेकिन फायदर वो डिवाइड होता है इंटर नोड, नोड, और नोड के बाद ब्रांचेस बनते हैं. ब्रांचेस के बाद जो डिवीजन होता है वो हमारा लीफ बनता है. तो हम लोग समझ जाएंगे कि लीफ टेंड्रिल स्टेम टेंड्रिल को डायग्राम से. तो चलो यहाँ पे मैं दो बम्बो लेता हूँ या दो स्टिक लेता हूँ, क्योंकि हमें डायग्राम को समझाना है बोथ स्टेम टेंड्रिल एंड लीफ टेंड्रिल. अब स्टेम टेंड्रिल का आप एग्जांपल लिख लेना, बीटर गॉड, हियर यू कैन सी पीस, लिलीज प्लांट, ये सभी में होते हैं. आपको क्लियर दिख रहा है यहाँ तक, कोई डाउट है? चलो अब देख लेते हैं कि डायग्राम के थ्रू कैसे होता है स्टेम टेंड्रिल, क्या होता है लीफ टेंड्रिल. सपोज वी आर टेकिंग हियर वन प्लांट. Okay, all right, we took here one plant. चलो, अब ये जो फर्स्ट वाला केस है आपको दिख रहा है क्लियरिटी से, ये हमारा कौन सा है बता देता हूं. ये स्टेम टेंड्रिल है. क्यों? क्योंकि देखो, ये जो मेन स्टेम है, इसी से जस्ट अभी ब्रांचेस का फॉर्मेशन ही हुआ है. यहां पर से जस्ट यहां पर से देखो, एक इंटरनोड मानो निकला है, एक नोड यहां से निकला है या एक ब्रांच निकला, और जस्ट उसके बगल से ये वाला हमारा टेंड्रिल का फॉर्मेशन हुआ. अब ये टेंड्रिल ऐसे ऐसे राउंड शेप में क्यों आ जाता है, ये आपको डाउट होगा कि ऐसे ऐसे क्यों हो जाता है, बेंडिंग शेप का या बाइंडिंग शेप का क्यों हो जाता है. सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी ड्रॉ द बोथ द डायग्राम्स so that you can clarify or you can differentiate both of them. Okay, so let me draw another diagram of plant here. चलो, अब आपको डायग्राम में क्लियर लग रहा है. एक जो है हमारा जस्ट लीफ के साइड से निकला और ये जो है हमारा मेन स्टेम के बगल से निकला. ठीक है, ये दोनों क्लैरिफाई हो गया. यानी ये हमारा लीफ टेंड्रिल नहीं है, ये हमारा स्टेम टेंड्रिल है, ये हमारा लीफ टेंड्रिल है. अब चलो बात करते हैं कि व्हाई दीज बेंडिंग लाइक थिंग्स हैपन ड्यूरिंग द जर्मिनेशन और ड्यूरिंग द एनलार्जमेंट ऑफ द प्लांट. ऐसा क्यों होता है? तो आपको बता देता हूं कि गाइस, whenever those surface which are in the contact with the any surface, at that time it gets
reduce or it gets reduction in the height as compared to the another region. कैसे समझेंगे? तो ऐसे समझो कि अगर कोई भी टेंड्रिल या कोई भी प्लांट का पार्ट किसी भी सरफेस के साथ कांटेक्ट में रहेगा तो वह वाला सरफेस जो कांटेक्ट में उसके कंपेयर में जो अदर सरफेस है वह जल्दी ग्रो कर जाता है। अब रीजन देखो कि ये वाला हमारा टेंड्रिल्स यहाँ पे आके इसके साथ क्लोज में कांटेक्ट में आ गया, तो ये जो बचा हुआ टेंड्रिल था ये तो ग्रो कर रहा था। अब अगर मैं कहूं कि किसी रस्सी को अगर मैं इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे पकड़े रहूं और बीच से कोई खींचे तो बताओ क्या होगा? यहाँ पे फिक्स है, यहाँ पे नहीं कुछ हो सकता है, और बीच से उसे कोई बड़ा करने का कोशिश, क्या होगा? वो धीरे धीरे टर्न होगा, ऐसे ऐसे टर्न होने लगा, बहुत स्ट्रेच हुआ, लेकिन हमारे ये फिक्स है, ये नहीं हटेगा। तो कैसे हो जाए बताओ आप? ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर हो जाएगा। सिमिलरली यही यहाँ पे होता है और इसी कारण से ये विनोइंग लाइक का स्ट्रक्चर ऐसे 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 ले लेता है और फाइनली ये विथ द प्रोसेस ऑफ ऑक्सिन हार्मोन्स ये जब ऊपर ग्रो करता है तो वह सपोर्ट के लिए ऐसे ऐसे पूरी तरह से टर्न हो जाता है। नाउ गाइस, इफ यू आर हैविंग मोर डाउट प्लीज गो एंड आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स सेक्शन। नाउ वी कैन गो टुवर्ड्स द नेस्टिक मूवमेंट और नेस्टिज्म। चलो स्टार्ट करते हैं नेस्टिक मूवमेंट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेस्टिस और नेस्टिक मूवमेंट। nestic moments. Okay, so guys, in the last video only I told you certain things regarding to nestic movement, a type of plants movement which can be a growth movement or it can't be a growth movement. means that यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ये तो ग्रोथ भी हो सकता है, नहीं तो ग्रोथ नहीं भी हो सकता है। एग्जाम्पल के साथ मैंने समझा दिया था। सपोज दैट वी कैन सी टच मी नॉट, छुई मुई प्लांट। व्हेन वी टच द टच मी नॉट प्लांट इट only gets shut up or close, not in order to growth, not in order to prevent something, बस उसे खतरे से बचाने के लिए वो shut out हो जाता है। और we told something that guys in we saw something in the last video, but yeah, nestic movement is a type of movement in which the direction of the response is not coordinated with the direction of stimulus, यानी direction of stimulus कोई भी इस पे मैटर ही नहीं करता है। किस साइड से भी तुम कुछ भी करो नेस्टिक मूवमेंट अपना रिस्पांस देगा ही देगा। डायरेक्शन इस साइड रहेगा हमारा स्टिमुलस का, लेकिन इस साइड रिस्पांस आएगा, हाँ आएगा। आप यही तो नेस्टिक मूवमेंट को डिफरेंशिएट करता है हमारा किस मूवमेंट से? ट्रॉपिक मूवमेंट से। ओके गाइस, सो नाउ वी कैन स्टार्ट। सो फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू सी ओवर हियर इज दैट हियर वी कैन सी, एज आई टोल्ड यू, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स मूवमेंट्स आर वेरी वेरी स्लो, वेरी स्लो। तो अब आपको एक तो दिमाग में एक डॉट आ रहा होगा, यू माइट बी हैविंग वन डॉट और यू माइट बी गेटिंग वन डॉट इन योर माइंड, व्हाई टच मी नॉट प्लांट responses in so quick manner as suppose we are just we touched one touch me not leave and just within some second it gets shut up. Why? You might be having this doubt. Very very good question. Just let me start with this one. Actually guys, in class 10th syllabus you have to study only two types of nestic movement. First one we can see thigmonasty and second one photonasty. Okay, so first one thigmonasty, like touch me not plant we can say thigmonasty. First one thigmonasty. Let's start. Actually guys, we can see here thig means touch and nasty the nestic movement. Thigmonasty. So guys, in case of touch me not plant, you all are asking why touch me not plant responses in just a quick manner as compared to all other plants. तो चलो इसका बहुत बड़ा रीजन क्या है अभी आपको समझाता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ टच मी नॉट लीव्स। चलो समझने के लिए ऐसा बना रहा हूं, ठीक है? इसमें कोई डाउट रहेगा तो पूछ लेना। ऐसा नहीं होता, बस आपको समझाने के लिए डायग्राम, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एम ड्राइंग दिस डायग्राम। ओके, so as here we can see they possesses a sac like structure which is known as, I will tell you later, wait, okay, here, okay, here, okay, here this sac like structure is known as pulvini. Pulvini. All right guys, can you see? Okay, is it visible? No problem, let me write from black marker.
So guys, we can see this sac-like structure is known as pulvini, and this pulvini possesses water molecules. And because of the presence of water molecules, it is always having a type of pressure or it is always turgor. ठीक है, ये हमेशा टर्ग्यूर रहता है. अब चलो एक बात हमें क्या देखने वाली बात है कि whenever we touch the leaves of touch me not plant or chew me plant, at that time a sudden sensation happens in the leaves of touch me not plant, and because of that sensation these water molecules get out. Means that with the process of osmosis these water particles get off from these pulvini, and finally when there is no water particles or no water molecules, at that time these pulvini became like this. Means that they are having turgor pressure, so they are like this spread up, but whenever they go touched, at that time they just set up. And because of the water loss from the pulvini, all the leaves just got set up as the pulvini reacted. तो यही कारण होता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स जैसे ही मूव करते हैं फटाफट से क्यूब में रिस्पॉन्स करके बंद हो जाता है. अब सेम क्या होता है कि विद इन 15 to 30 minutes, आफ्टर 15 to 30 minutes we can see that they got their shape back, because वाटर मॉलिक्यूल्स को ऑस्मोसिस होने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन फाइनली जब ऑस्मोसिस फाइनली हो जाता है तो फाइनली आ जाते हैं. So guys, first one we finished, so we should not waste too much our time on this topic. So next thing we are going to see our which one, photonasty. चलो photonasty क्या है यहीं पे समझा देता हूँ, क्योंकि हमें most of the इसमें क्या भी डील करना है यहाँ पे, we have to deal on the animal coordination. Okay, photonasty, we can see the same thing. Photo is our light and nasty is the nastic movement. So guys, यहाँ पे क्या होगा कि देखो photonasty में भी वही है कि यहाँ पे कभी भी क्या करेगा, स्टिमुलस का डायरेक्शन मैटर नहीं करता है. मीन्स दैट सपोज इन फोटो ट्रॉपिक मूवमेंट वी सॉ देयर गाइस, सपोज वी आर टेकिंग sunlight or we are keeping the plant in a dark room, at that time we can see whenever or wherever the sunlight is kept in that direction only the plant got turned, but here in this case we can see totally opposite. और एक हमेशा याद रखना, थिग्मोनास्टी जो था ना, ये ग्रोथ मोमेंट नहीं था, बल्कि ये जो फोटोनास्टी होता है ये ग्रोथ मोमेंट का होता है रीच, या कहो कि ये ग्रोथ मोमेंट का एक पार्ट होता है ग्रोथ मोमेंट को. ठीक है, अब चलो बात करते हैं फोटोनास्टी के बारे में. तो आपको मैंने एक चीज बता दिया कि फोटोनास्टी में एक चीज क्या है कि यहाँ पे नेस्टिक मूवमेंट हो रहा है और लाइट हमारा स्टिमुलस का वर्क कर रहा है. सेकेंड थिंग गाइस कि चलो एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, मून फ्लावर. ये ऐसा फ्लावर है जो सिर्फ रात को खिलता है, यानी दिन भर ये सेटअप पोजिशन में रहता है. ड्यूरिंग द नाइट दे गेट्स ऑफ बिकॉज ऑफ द मूनलाइट. अब कहिएगा कि मूनलाइट तो मिल रहा है तो ये हमारा नेस्टिक मूवमेंट ना होगा, ट्रॉपिक मूवमेंट क्यों नहीं हुआ. अब इसका रीजन क्या है कि सपोज करिए कि मून हमारा इस डायरेक्शन में थे, किस डायरेक्शन में से, सन इस डायरेक्शन में थे तो हमारा प्लांट इधर टर्न हो गया, लेकिन मून इस डायरेक्शन में है. तो ऐसा नहीं होता है कि ये जो ओपन अप होगा इसका फ्लावर्स, ठीक है, ये मान लो हमारा है, तो ऐसा नहीं है कि ये इस साइड टर्न होगा, नहीं होगा, बल्कि ये जस्ट फ्लप आउट करता है, जहां पे है वहीं पर से खुल जाता है, और ये एक्चुअली ग्रोथ मूवमेंट परफॉर्म करता है, एंड ये इसी कारण से हमारा नेस्टिंग मूवमेंट आता है. ठीक है, क्लियर हो गया गाइस. नाउ आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू सी द इंट्रोमिशन ऑफ और इंटरमिशन ऑफ दिस पार्टिकुलर वीडियो. नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स एनिमल कोऑर्डिनेशन. तो चलो स्टार्ट करते हैं एनिमल कोऑर्डिनेशन. Okay students, now we are going to move towards animal coordination. तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले या इस कंसेप्ट को स्टार्ट करने से पहले we have to remember certain concepts in our mind. As during the first part of this video only, I told you that in case of plants they are having both nervous system as well as endocrine system, and because of the presence of both of these systems they can respond in much more systematic way as compared to that of plants. That's why animals can move from one place to another, as they are not stationary. They can respond in various ways. Suppose we are going to get beat from our father, so how we will react?
either we can jump up from one place to another or we can escape from there or we can start crying. So ये सभी responses हम लोग दिखा सकते हैं, हमारे पास choices रहती है एनिमल्स के पास, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि एनिमल्स के पास दोनों सिस्टम होता है, फर्स्ट वन नर्वस सिस्टम एंड सेकंड वन हार्मोनल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम. बट गाइस यू हैव टू रिमेंबर ऑलवेज दैट मोस्ट ऑफ द primitive multicellular organisms do or animals do not possess these two system, ठीक है। तो उनके पास क्या होता है, जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, हाइड्रा जो होता है इसके पास बेचारे के पास क्या नहीं होता है, इसके पास एंडोक्राइन सिस्टम नहीं होता, ठीक है। दे डू नॉट पोजेसेस एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, दे just react or they just coordinate or just respond due to the presence of the which system, बताओ, नर्वस सिस्टम, ठीक है। आपको क्लियर हो गया कि नर्वस सिस्टम के कारण ही ये रिस्पॉन्ड करते हैं या रिएक्ट कर पाते हैं। अब हमारे दिमाग में एक बात आ रहा होगा कि हाइड्रा का डिटेल से जानेंगे, बट हियर आपको क्या करना है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग ह्यूमन बीइंग के बारे में ही यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम जस्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट और जस्ट वी आर गोइंग टू सी फर्दर कंसेप्ट, ठीक है। So guys, now let's see some certain more topics regarded with animal coordination. तो चलो देखते हैं। अब बातें हो गई कि एनिमल कोऑर्डिनेशन में कौन कौन सारे इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो एक हमारा नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। तो यू हैव टू राइट डाउन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन system means that these both system must be involved in order for the human beings or for the coordination of human organisms or human beings, ठीक है। अब तो बातें हो गई, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये एक भी रहेगा तो काम चल जाता है। कैसे बता दूंगा, या दोनों का रहने का भी आवश्यकता बहुत बढ़ जाती है, या कहो कि ये दोनों पोजेस करते हैं और नहीं भी करते हैं। समझा दूंगा ये दोनों में, मतलब कि कई बार एक्सेप्शनल केस कब होता है, कैसे वहां पे कौन सा रिएक्शन होता है। तो हियर इन दिस वीडियो वी विल जस्ट सी दिस वन नर्वस सिस्टम, क्योंकि ये दोनों सिस्टम बहुत बड़ा है, ठीक है। सो गाइस फ्रॉम क्लास 9th ओनली वी आर नोइंग दैट नर्वस सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ नर्व्स और न्यूरॉन्स। नर्व्स या न्यूरॉन से बने होते हैं, ठीक है। अब हम लोग को पता है गाइस कि देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स इन ह्यूमन बीइंग्स। कौन कौन से हैं बताओ। तो सभी को याद है, आई, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन Is there any doubt? No more doubts. Okay, so guys here we can see in order for the reaction of any organism or any human beings, there must be the transportation of signals from these organs to the human brain or to the central nervous system. अब चलो बात करते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम फिर कहां से आ गया। तो आपको बता दूं कि नर्वस सिस्टम को फिर फर्दर 2 टाइप में बांटा गया, एक होता है सीएनएस एंड एक होता है पीएनएस। फर्स्ट वन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सेकंड वन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इन केस ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम देयर मस्ट बी द प्रेजेंस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड नर्व्स, बट इन केस ऑफ पीएनएस मींस दैट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम देयर इज ओनली और देयर इज नॉट बाउंडेड ऑफ, यानी वहां पे ब्रेन का रोल नहीं होता है, बस वहां पे नर्व्स जो होते हैं वो आपस में रोल को डील कर लेते हैं, ठीक है। अब चलो बात कर रहे हैं आई, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन के बारे में। मींस दैट वी आर नाउ डिस्कसिंग अबाउट द सेंसेस और सेंस ऑर्गन्स दैट वी पोजेस, ठीक है। अब एक चीज आपके दिमाग में हमेशा आनी चाहिए कि जब भी ये वाला टर्म सुनिएगा तो 2 बातें हमेशा दिमाग में आनी ही चाहिए। पहली बात हो गई कि एक टर्म है जिसका नाम है हमारा रिसेप्टर्स। फर्स्ट वन रिसेप्टर्स एंड सेकेंड वन इफेक्टर्स। So now we are going to see these both terms. What do you mean by receptors, or what is receptor and what is effector? So guys, these all sense organs possesses these receptors. Receptors are actually groups of cells or just a single cell which have the ability to transfer the stimulus energy in the
सिग्नल्स, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, ठीक है, समझ में आ गया रिसेप्टर होते हैं। अब देखो जानना कि रिसेप्टर के भी काफी टाइप होते हैं, कैसे, यही वाला टाइप होते हैं, जैसे आई में अवेलेबल होते हैं तो ये फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, ईयर में है तो फोनो रिसेप्टर्स, यू हैव टू नोट डाउन दिस ऑल टर्म्स, आई मीन्स लाइट तो फोटो रिसेप्टर, ईयर मीन्स साउंड फोनो रेसिस्टर, नोज मीन्स विच वन, वी कैन स्मेल, एंड स्मेल जब करेंगे तो उसका नाम आता है कौन सा, कमेंट करो, अरे भैया जब कमेंट नहीं करोगे तो कैसे बताऊंगा, बताओ, तो उसका क्या नाम बताओ जल्दी से, olfactory receptor, gastatory receptor and last one which one, thermoreceptor। यही कहने की थर्मोमीटर का नाम थर्मोमीटर होता है, बल्कि यहाँ पे क्या है थर्मो रिसेप्टर्स। तो समझ में आ गया रिसेप्टर्स क्या होता है। एंड व्हाट इज इफेक्टर, इफेक्टर मीन्स whenever the signals which are just generated or which are sent from the receptors they move towards the brain। और इतना समझो ब्रेन अभी कर रहा हूं, अभी डिटेल में बताऊंगा कैसे कहां कैसे जाता है, बट इतना समझो ब्रेन की ओर जाते हैं। एंड फ्रॉम द ब्रेन दे ऑल्सो कम्स एन ऑर्डर, और द ऑर्डर विच इज गिवन बाय द ब्रेन इज ब्रॉट बाय नर्व्स। अब कौन सा नर्व अभी मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना समझो कि नर्व्स के थ्रू लाया जाता है। एंड आफ्टर दैट फर्दर द नर्व्स गिव्स दोज इलेक्ट्रिकल इंपल्स टू दीज ऑर्गन्स विच आर इफेक्टर्स। जैसे कि समझा दूं कि अगर मानो हम लोगों के घरों में अभी रसगुल्ले बन रहे हैं, हाँ जी बन रहे हैं, चलो मान लेते हैं, तो मम्मी तो किचन में बना रही है, हम तो यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं, आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं। अब हम लोग को स्मेल आया कि उधर क्या बन रहा है, रसगुल्ले, और रसगुल्ले सुन के बच्चों के मुंह में पानी आ रही है। अब पानी कैसे आया, पानी आने का रीजन क्या था, यहाँ पे मेरा क्या है, कौन सा रिसेप्टर है बताओ, नोज के पास कौन सा रिसेप्टर, olfactory receptor, and olfactory receptor generated impulse which went to the brain, and from the brain we received one signal that लगता है हमें मिलेगा, माल मटेरियल मिलेगा। और यही जो सिग्नल आया ना, ये हमारा इफेक्टर कौन हुआ, इफेक्टर मेरा माउथ हुआ। माउथ क्या किया, वाटर के सलीवा प्रोड्यूस किया। यानी ये टोटल हमारा जो हो रहा है यहाँ पे रिसेप्टर एंड इफेक्टर का रोल है। समझ में आ गया ये दोनों क्या होते हैं। अब चलो डिटेल से आपको बताऊंगा सीएनएस एंड पीएनएस के बारे में। So unfortunately guys, we have to drop our video over here only, because as I told you, we have to try to make all our videos within the time duration of 30 minutes to 45 minutes। 30 minutes हो गया बताओ। अब अगर कुछ बचा हुआ है तो आराम से पढ़ेंगे, क्या जल्दबाजी है। आपको 4 नहीं 5 पार्ट आएंगे, तीसरे पार्ट है समझ में आना चाहिए। वीडियो को ड्यूरेशन के ऊपर मत जाओ, जो भी पढ़ते हैं सभी समझ में आना चाहिए, ठीक है। ओके गाइस, if you think that this video gave you certain things, certain concept that you have to remember for the board examination, please subscribe the channel and press the bell icon too, because and another thing which I have to tell you all is that you must join the Telegram channel, because one another comment came that I am not sharing anything on the Telegram channel, but the Telegram channel which you had joined the last time, you should not join that channel only. I have changed the channel, you should go and see. I will upload the link of that channel in the description box. Thanks for watching. Have a nice day to you all.